Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Oh, good evening and welcome everyone. Thank you for joining for today's session. My name is Shruti Badguzar and I'm a third year computer science student, and I welcome you all on the behalf of GHRIBM Institute of Business Management Jalgaon and Department of Computer Science and Information Technology, Artificial Intelligence and Data Science. Today we'll be having a workshop on entrepreneurship skill, attitude and behavior development by Mr. Bhushan Patil. Before we get started, if you have any questions during the talk, please type them in your chat box. I'll bring them up during the presentation, and we'll also have time for question and answers at the end. Before I brief you about our expert for today's session, I would like to request HOD ma'am of CSE-IT-AI-DS department, Mrs. Swati Patil ma'am, to please have the control and say a few words. Over to you, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Yes, thank you, ma'am. So I would like to introduce you to our expert, Mr. Bhushan Patil. He is the founder of multiple ventures, had monitored and volunteered at multiple organizations as RV School of Design, Bangalore, and PGDM Business Design Program, Mumbai. He also has president at Paytm, director of Alibaba, a business mentor, vocational and inceptor, product and business head. He's seen through and built multiple global business models and experience of accelerating ideas by building the right platforms, raising funds, setting great global teams, alliances, and now an early stage VC. He has helped build controls and levers of growth for many ideas on global platforms, managed to learn, ideate, and work on different business and non-business ideas with various people, cultures, business models, almost all across the world except Africa. Domains he has worked with are fintech, retail, media, and global tech growth. Now, without further ado, we'll turn the time over to Mr. Bhushan Patil, sir. Over to you, sir. Yeah, hi everybody. Can you hear me? Yes, sir, clearly. Okay, great. So let's make maybe this as an interactive session. It's good to kind of also hear some feedback, questions. So you can type in, but at the same maybe later on I will also, I think we'll have some time to kind of have some audio questions also. As I think I've been introduced, yes, I've worked for about 22 years in various countries, set up larger businesses, be it at Paytm globally or in India. So happy to kind of share some of my kind of learnings from my experiences here, and hopefully that will be useful for you. So let me start. I think I just wanted, maybe I'll use multiple languages here so that everybody kind of connect with what this whole gamut of entrepreneurship is and what are the possibilities, really speaking, right? So if I just ask you this question, do you know, किसी को यहाँ पे पता है कि इंडिया में कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है? किसी को पता है? So maybe I'll just jump in because you must be feeling a little shy here. तो 900 मिलियन लोगों के पास, मतलब आउट ऑफ 100 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट्स है, थैंक्स टू वो जनधन योजना और जो भी योजना अभी रिसेंटली चली थी. बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक बैंकिंग इकोसिस्टम ये भी बहुत अच्छा से डेवलप हो गया है. इसकी वजह से ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडिया में लोगों के पास बैंक अकाउंट्स है. उसमें से अराउंड, यदि आप देखेंगे, अराउंड 6-6.5 करोड़ लोगों के पास, मतलब 60 मिलियन लोगों के पास एक अपन देखेंगे तो दे हैव क्रेडिट कार्ड्स.
तो क्रेडिट होता क्या है, मतलब क्रेडिट इज नथिंग बट एबिलिटी टू टेक सम लोन, राइट? कि जिसकी कोई तो बोलता है, कोई बैंक बोलता है कि आई विल गिव यू क्रेडिट कार्ड, तो बेस्ड ऑन आपका जो क्रेडिट होगा या कोई भी हिस्ट्री होगी आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री, उसके हिसाब से बोलेगा कि आपके 2 लाख का क्रेडिट कार्ड देता हूँ, 1 लाख का देता हूँ या 50 लाख का देता हूँ. बट ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि 90 करोड़ लोगों के पास लेट्स से बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन 6-6.5 करोड़ लोगों के पास ही खाली क्रेडिट है, राइट? बट सो देयर इज अ ह्यूज गैप, राइट? सो दैट्स जस्ट टू गिव एन एग्जांपल. जो आपके मतलब मोर और लेस आई थिंक सबके पास बैंक अकाउंट हो गया, क्रेडिट कार्ड बहुत कम लोग के पास होंगे, but there's a huge gap. So there are many opportunities here. Like for example, how do you bring credit to the larger masses, right? And we'll talk more of these opportunities. But I just wanted to एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि बेसिकली जब मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सब लोग के पास मोबाइल फोन होता है, बट हाउ मेनी ऑफ यूजर्स ऑफ द मोबाइल फोन, और लेट्स से जितने मोबाइल फोन यूजर्स है उनमें से कितने लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, या कितने लोग पर्टिकुलर सर्विस अवेल कराते हैं, या कितने लोग लेट्स से ट्रेन या बसेस की बुकिंग ऑनलाइन करते हैं. वो बहुत बड़ा गैप है. एंड जहाँ भी ये बड़ी गैप है कि जहाँ पे मार्केट रेडी हो चुका है और पर्टिकुलर कोई चीज की एक जैसे हम लिए एग्जांपल हमने लिया कि 90 करोड़ लोग के पास ये है बैंक अकाउंट, लेकिन 6 करोड़ लोग के पास क्रेडिट कार्ड है. या लेट्स से हम बोलते हैं कि 600 मिलियन मतलब अराउंड 60 करोड़ लोग इंडिया में आज के डेट में इंटरनेट मतलब उनके पास इंटरनेट है, राइट? लेकिन जो ई कॉमर्स में खरीदते हैं, ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हैं, वो 10-15 मिलियन मंथ ऑन मंथ एक महीने की बात करेंगे तो वो 10 मिलियन ही खरीदते हैं. मतलब 6 में से एक बंदा खरीद रहा है, तो 5 लोग जो कर रहे थे मतलब वो इंटरनेट लेके कर क्या रहे हैं. दैट इज वेयर द गैप एग्जिस्ट. सो देयर इज अ व्हाइल वी सी इंटरनेट अभी डेवलप हो चुका है पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, अभी इतना इंटरनेट मतलब एवरीबडी यूजिंग लेट्स से यूट्यूब और सम ऑफ दिस काइंड ऑफ चैनल्स. तो फिर भी एक बड़ा गैप होता है जो बिजनेस की वजह से मतलब पर्टिकुलर कोई भी बिजनेस का देखेंगे, रिटेल के हिसाब से देखेंगे, फिनटेक के हिसाब से देखेंगे, हेल्थ में देखेंगे, ह्यूज गैप कि लोग डिजिटाइज हो चुके हैं लेकिन जो सर्विसेज आ रही है उसका यूसेज बहुत कम है. तो एक बड़ा डेल्टा है यहाँ पे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है. ऑब्वियसली नाउ अभी जो बड़ी जायंट कंपनीज है इंडिया में, दे आर ट्राइंग टू डू स्लोली समथिंग. बट क्या हो रहा है कि जिस तरह से इंटरनेट की ग्रोथ हो चुकी है, जिस तरह से इंटरनेट लोगों के पास पहुंचा है, उस तरह से कंपनीज उनको केटर नहीं कर पा रही है. फॉर एग्जांपल लार्ज जायंट्स, इवन लेट्स से कंपनीज लाइक पेटीएम, रिलायंस, यू टॉक अबाउट लेट्स से एयरटेल्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सेट्रा, या कोई भी रिटेल आप जायंट लेते, इवन पतंजलि फॉर दैट मैटर ऑन अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये इसको केटर नहीं कर पा रहे हैं, राइट? कि जितने 600 मिलियन लोग आ गए सडनली इंटरनेट के ऊपर, बट कैन आई रियली मतलब 600 मिलियन लोगों के पास मतलब 200 मिलियन फैमिलीज होती है, 200 मिलियन एक सिंपल टूथपेस्ट भी किसी को देने का है तो उनका उतना कैपेसिटी ही नहीं है सप्लाई करने का, राइट? तो दिस इज ह्यूज गैप एंड दिस इज द गैप व्हिच इज गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट लॉट मोर वाइब्रेंसी इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. जो अपने अभी सब लोगों ने जिसको भी मतलब थोड़ा इंथू हुआ, कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ स्टार्टअप करेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा. शार्क टैंक आने का वजह यही है कि मतलब राइट नाउ विद द कस्प ऑफ थिंग्स कि डिजिटलाइजेशन आया है, एंटरप्रेन्योरशिप अभी आनी बाकी है, राइट? इसीलिए प्रोग्राम्स लाइक शार्क टैंक आर कमिंग, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ टीआरपी बन सकती है. लोगों के पास इंटरनेट है, हाथ पे इंटरनेट है, किसी ना किसी का भाई, भांजा, भतीजा या बेटा या कोई भी बंदा है, वो कुछ ना कुछ स्टार्टअप में गया है या कोई आईटी में कुछ गया के कुछ स्टार्टअप के रिलेटेड कुछ कर रहा है, तो सबको एक्साइटमेंट है, राइट? तो आई थिंक वी आर एट द कस्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? या कोई पर्टिकुलर स्टार्टअप कल्चर काइंड ऑफ यू कैन कॉल इट एज, राइट? तो वो एक इंडिया में एज एनवायरमेंट बना है, राइट? दैट्स द फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आई वांटेड टू हाईलाइट यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है एंड बड़ी कंपनीज केटर नहीं कर पा रही है, राइट? फॉर एग्जांपल फॉर अमेजॉन टू कम टू लेट्स से स्मॉल सिटी लाइक लेट्स से जलगांव विल टेक लॉट ऑफ टाइम. जोमेटो आया है, बट जोमेटो जैसी जो 25 कंपनी मार्केट में आ चुकी है आज के डेट में, दे आर नॉट इन सिटी लाइक जलगांव, राइट? और नासिक काइंड ऑफ, दे आर स्लोली कमिंग. बट आज की डेट में देखेंगे कि जोमेटो जब चालू हुआ था, जैसे बैंगलोर या मुंबई से, या लेट्स से स्विगी स्टार्टेड फ्रॉम बैंगलोर एक्सेट्रा, they started with maybe 50 customer, 500 customers and that kind of thing. वो possibly जलगांव से भी हो सकती है. And there are many clusters. जैसे इंदौर was not on the radar और जयपुर was not on the radar of startup ecosystem, but recently last maybe 5 to 6 years में some of these became like a startup hubs, क्योंकि वहाँ पे customer भी है, टेक्नोलॉजी के बंदे भी, मतलब because of local education institutes are providing etc. A lot of entrepreneurship started from there. In fact, Jaipur, Indore, we ourselves as a company has invested in about 5 companies
let's say Gramophone, Shop Kirana, Dealshare, which is in Jaipur company. Again, all these companies are like very large companies. All these companies like more than 300 to 500 crore valuation companies right now. So fairly large companies. तो ये possibilities अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है. Rather than waiting for big giants to come to smaller cities, can the smaller city entrepreneurs build something from there and then go upwards in the hierarchy of development? तो वो environment का एक बड़ा सा factor है. अभी थोड़ा एक मतलब we'll get in down to some of the sectors की बात करते हैं कि कौन-कौन से सेक्टर में क्या-क्या हो रहा है. And I'll start with gaming, right? Because I think that is something important. I think most of you would be playing some or other games right now. मतलब starting from Roblox to let's say PUBG तो भी नहीं है, but let's say this network kind of games right now. तो गेमिंग इंडिया में फॉर एग्जांपल 6-7 साल पहले was not as a phenomena, right? Because एक जो डिजिटल फर्स्ट लोग थे या जो डिजिटली कनेक्टेड लोग थे, they were not as vibrant as let's say you guys, right? They were a little bit like maybe little senior people or like maybe from an age spectrum perspective, they're like 25-30 year onwards kind of people. But last I think 3-5 साल में because of Geo or whatever kind of digitization we have done, people like you and even let's say younger people, let's say 7th, 8th standard, 9th standard people, students have started getting connected to internet, right? And more so in last 2 years because of people working from home also. So gaming, one एक जो हुआ कि digitization of this age group happened, and वहाँ पे let's say gaming becomes one important kind of a sector because whatever said and then as a student or as a kind of a, we call them Gen Z, right? These people उनको time spend करने के लिए क्या हो सकता है? Obviously most of the people like you now also are not possibly आपको शायद local Bollywood या movies अच्छी नहीं लगती होगी. You might be looking at some kind of a Netflix का series देख रहे होंगे या कुछ series देख रहे होंगे. तो एक vibrancy आया है content and gaming के sector में. एंड वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो चुकी है. एंड दिस अपॉर्चुनिटीज नॉट लाइक कि जैसे अपने को कभी लगता है मतलब एज ए यूजर आप उसको टाइम स्पेंड कर रहे हो तो यू माइट बी लूजिंग लॉट ऑफ थिंग, बट मतलब देयर आर बेनिफिट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गेमिंग. जो गेम खेलते हैं एज ए यूजर उनके प्रोज भी है, कॉन्स भी है. इफ यू आर प्लेइंग सर्टेन टाइप ऑफ गेम्स योर कंसंट्रेशन एंड ऑल दिस इंक्रीजेस, बट इफ एनीथिंग एक्सेसिव इज अ प्रॉब्लम एंड एडिक्शन इज अ प्रॉब्लम. बट समबडी इज रनिंग दिस एज अ बिजनेस, राइट? या इंस्टाग्राम जो भी लेट्स से फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ generation like me and maybe some of the other people, let's say senior people, they are like more of Facebook generation, Facebook Twitter generation. जो नया generation आ रहा है वो more Instagram generation. Possibly most of you would be on Instagram, you might not even have a Facebook account for that matter. तो एक जो ये हुआ, I think gaming has created a huge space, especially in India as an entrepreneur, for entrepreneurs, right? And which possibly you guys also like. कि जो हम use कर रहे day to day, why can't you create certain things? In fact, एक let's say maybe 7-8 years back, the only games used to work like जो रमी, ऑनलाइन रमी या 3 पत्ती वाले गेम चलते थे. But today, if you look at right now, Dream 11 kind of players are coming in, MPL kind of players are coming, who are actually creating kind of a gamification logic to kind of almost like जो IPL में होता है, auction होता है, players होते हैं, they select the players and all this thing. You can actually create your own teams kind of a thing. So it is gaming per se. It can be as shallow as let's say playing some kind of a subsidy or kind of a word game online, to all the way up to like a money related gaming which is like related to fantasy etc. और अभी जैसे कुछ स्टॉक मार्केट के अराउंड भी आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से कुछ किसी को आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो मे बी यू कैन क्रिएट लाइक गेमिफाइड एक्सपीरियंस अबाउट फिनटेक और लेट्स से फाइनेंशियल स्टॉक्स एक्सेट्रा. तो एक गेमिंग में जो इंडिया में अभी बेनिफिट सेम थिंग है कि लाइक every kid right now, anybody who is from 6th standard onwards, he has got some internet connection, but content create नहीं हुआ है. एंड जहाँ पे आई थिंक लेट्स गो बैक, जैसे टीवी को अंडरस्टैंड करते हैं जस्ट फॉर 5-10 मिनट्स का बात करते हैं. जैसे टीवी आया था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया, कलर टीवी आया, तो टीवी में क्या हुआ पहले कि लेट्स से 2 चैनल चलते थे, दूरदर्शन चलता था और DD1 या DD2 ऐसे कुछ भी चलते. फिर लोगों को पता चला कि जैसे जो बिजनेसेस थे दे फाउंड आउट कि लोग टीवी के पास बैठते हैं बट उनको ये 6 से 7 का टाइम फिक्स्ड है, दे वहाँ पे न्यूज देखते हैं, कोई हम लोग देखते हैं, कोई दुनिया देखते, दैट काइंड ऑफ ओल्डर सीरियल. दे स्टार्टेड पुटिंग लिटिल बिट ऑफ कंटेंट. सो व्हाट विल हैपन, 24 आवर्स ऑफ अ टीवी across different genres, sports content है, news content है, entertainment है, सास बहू है, soap है, opera है, all this kind of thing. Then also there is international content. So what happened, वो जो 24 घंटे थे वो पूरे ऑक्यूपाई हो चुके हैं, right? तो and it's a good medium to understand कि टीवी में जैसे हुआ for different kind of people, students, housewives, parents, old age people, 24 घंटा across different genre kind of thing पूरा सब कवर हो चुका है, right? तो वही हो रहा है जैसे डिजिटल इकोनॉमी में हो रहा है. जैसे आपके पास मोबाइल है तो आपके पास मोबाइल यूजर के पास 24 घंटा होता है, या लेट्स से आप मतलब
6-7 घंटे का स्लीप छोड़ देते हैं. इनफैक्ट देयर आर एप्स राइट नाउ व्हिच आर आल्सो वर्किंग व्हेन यू आर स्लीपिंग राइट नाउ, राइट. तो 24 घंटा है एक आदमी के पास, उसके मोबाइल है, इंटरनेट है. हाउ डू यू डिवाइड दैट अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज? वो गेम्स होता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, एनीथिंग, एंड देन 24 घंटा उसको चला सकता है. कोई ट्रेडर है तो वो 24 घंटा फाइनेंस देखेगा, लेकिन कोई पर्टिकुलर लेट्स से कोई ओल्ड एज है तो 24 घंटा फाइनेंस शायद देखेगा नहीं, वो सुबह शायद फाइनेंस का कुछ देख लेगा, स्टॉक की प्राइस क्या है, देन ही माइट गेट इनटू लेट्स से टिपिकल लेट्स से काइंड ऑफ अदर सीरियल काइंड ऑफ कंटेंट्स. तो समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग ऑन डिजिटल साइड आल्सो, मोबाइल पे. तो ये मतलब दैट कुड बी वन वे ऑफ, आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि मेरे पास मोबाइल है, व्हाट आर द पॉकेट्स. जैसे रात लेट्स से 9 से 10 बजे के बीच में क्या क्या ऐप यूज लोग क्या ऐप यूज करना चाहिए, एंड यू माइट फाइंड सम इंटरेस्टिंग ऐप और वेब और एनी काइंड ऑफ डिजिटल काइंड ऑफ कंटेंट टू बी क्रिएटेड फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड वो थोड़ा गेमिंग में थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बिकॉज इट इज समथिंग व्हिच इज कनेक्ट्स टू योर काइंड ऑफ जॉनर पर से, और लेट्स से एज ग्रुप पर से, जेनजी के लिए होता है. दूसरा बात करते हैं रिटेल का, राइट. क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हो रोटी कपड़ा मकान व्हाटएवर आप लेते हो ऑनलाइन या जो भी है, ऑनलाइन लेते हो या ऑफलाइन लेते हो, तो रिटेल में एक रिवोल्यूशन आ रहा है. एंड वहां पे भी थोड़ा कुछ अपॉर्चुनिटीज क्यों आ रही है, राइट. पहले लोगों ने वो शॉप्स बनाए, किसी ने मॉल्स बनाए हैं, बट क्या हुआ, डिजिटाइजेशन की वजह से ये शॉप मॉल इररिलेवेंट हो गए, राइट. मतलब आज के डेट में मतलब जैसे कोविड के टाइम में मैंने देखा हुआ है कि मे बी मेनी ऑफ यू माइट हैव स्टार्टेड ऑर्डरिंग फ्रॉम व्हाट्सएप, राइट. तुमको कोई अमेजॉन फ्लिपकार्ट होने की जरूरत नहीं है गाँव में, राइट. वो आप व्हाट्सएप पर ऑर्डर कर सकते हो. और वैसा भी जैसे देयर आर लेट्स से दिस इंस्टेंट डिलीवरी काइंड ऑफ कमिंग, जो अभी फेमस हो रहा है इंडिया में, वो जेप्टो एंड सम ऑफ दिस प्लेयर, वो कोई अमेजॉन के वेयर हाउस से नहीं आने वाला है, नागपुर से लेकर दिल्ली तक चलने वाला नहीं है, नागपुर के नागपुर में ही चलने वाला है, जलगांव के जलगांव में ही चलने वाला है. तो वो एक जो है जस्ट इन टाइम वाला जो मॉडल है जो कॉमर्स में आ रहा है. तो कॉमर्स में भी क्या था, कॉमर्स 1.0 वाज लाइक ऑफलाइन, कॉमर्स 2.0 वाज लाइक फ्लिपकार्ट एंड दिस काइंड ऑफ सेंट्रल वेयर हाउस से सब लोगों को पहुंचा रहे. तो कॉमर्स 3.0 आ रहा है, वो ज्यादा वाइब्रेंट है. इट कुड बी वेरी लोकल, वेरी क्लस्टर ओरिएंटेड, कि जलगांव के अंदर ही सब डिलीवरी वगैरह चल रहा है. जैसे जोमेटो इज अ कॉमर्स कंपनी विद इन द सिटी, वो आपका ही कोई पर्टिकुलर सब्जी होगा या जो भी होगा वो आपको वही डिलीवर करवाएगा, जो कि वो शायद वो सब्जी अमेजोन पे बिकता भी नहीं होगा, राइट. दैट काइंड ऑफ. और उसके अंदर आ रहा है जैसे वीडियो कॉमर्स आ रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या होता था कि लोगों को वो कुछ पिक्चर देख के आपको समझना पड़ता है कि हाँ दिस इज समथिंग फिटिंग टू माई काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट. बट अभी वो नहीं हो रहा है. अभी पीपल एक्सपेक्टेशन ये है कि मतलब आई वांट टू सी समबडी प्लेइंग अ वीडियो, कि ये कैसा होता है, तो पहन के कैसा दिखता है, पीछे से कैसा दिखता है, या किसी पर्टिकुलर रिव्यूज होते हैं. तो वो कॉमर्स में आई थिंक अपॉर्चुनिटी वो भी आ रही है कि जैसे मीडियम ऑफ गोइंग टू कस्टमर इज ऑल्सो चेंजिंग. कि पहले ऑफलाइन था, दूसरे लोगों ने फ्लिपकार्ट मिंत्रा वाले वो किया. अभी थर्ड ऑलमोस्ट लाइक कॉमर्स 3.0 आ रहा है, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज वेरी वाइब्रेंट और मोर लाइक अ वीडियो लेड और मोर लाइक इंटरेक्टिव कॉमर्स काइंड ऑफ थिंग. अभी बहुत सारे लोग जो डेवलप कर रहे हैं कि कैन जो ऑफलाइन शॉप के जैसे आपने आप अभी ये ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो क्या. जैसे जूम कॉल से आप कोई शॉप को अंदर ही जूम कॉल कर लो, शॉप का आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, वो बोल सकता है कि हाँ सर क्या चाहिए आपको, मैं वो फोन लेके जाएगा, आपको दिखाएगा कि शैम्पू की बोतल है, बड़ी चाहिए तो बड़ी दिखा देगा, छोटी चाहिए छोटी, फिर ऑर्डर बुक करके दे देगा. सो लॉट ऑफ दीज वाइब्रेंसीज आर कमिंग. और ये वाइब्रेंसी जो है वो इट्स हार्डर फॉर दिस ऑफलाइन गाइज और ट्रेडिशनल गाइज टू गेट इनटू. कोई नया बंदा उसको लीड करेगा, राइट. एंड दैट्स व्हाट इज रियली हैपनिंग. लेट्स लुक एट मीशो, राइट. वो सोशल कॉमर्स से बड़े हुए हैं. जैसे लोगों को लग नहीं रहा था कि मीशो विल बिकम सो बिग अ कंपनी, राइट, आफ्टर फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा कमिंग इनटू पिक्चर, और लेट्स से अमेजॉन कमिंग इनटू इंडिया एक्सेट्रा. बट वो बन गए क्योंकि मीडियम ऑफ उसका सेल्स चैनल भी पूरा का पूरा चेंज हो चुका है. दैट्स समथिंग ऑन रिटेल साइड व्हिच यू गाइस हैव टू थिंक अबाउट. सिमिलरली फिनटेक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई थिंक. बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ चेंजेस हुए, जैसे बेसिक लोगों को बैंक अकाउंट ऑनलाइन दिया गया, फिर किसी को जैसे वॉलेट दिया गया, किसी को QR कोड दिया गया. अभी वो मैच्योर हो चुका है. बट उसके ऊपर बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल जो लास्ट 2 साल का ट्रेंड था वो इन्वेस्टमेंट एप्स का था. कि चलो आपने वो सेविंग कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, बट हाउ डू आई नाउ इनेबल यू टू डू स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, लेट्स से, राइट, यूजिंग डिजिटल इकोनॉमी. क्योंकि ट्रेडिशनली वो ऐसे डायरेक्ट किस पे होता था. हाउ डू आई डू एप्लीकेशन ऑफ इट. बहुत सारी जो ऐप आई एंड दे हैव रेज लॉट ऑफ मनी आल्सो, एंड दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग. और सबसे आई थिंक इंटरेस्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू पीपल आल्सो बी क्रिप्टो, राइट. आई एम श्योर दैट किसी ने यहाँ पे सुना होगा कि क्रिप्टो में कोई 3 महीने में करोड़पति हो गया, किसी ने 70 करोड़ कमा लिए 5 लाख 20 लाख डाल के. ये पॉसिबल है इन लाइक प्लेसेस क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स. क्रिप्टो थोड़ा मतलब इट्स अ वास्टर सब्जेक्ट, बट इट्स समहाउ रिलेट्स टू फिनटेक मोर. जो बिटकॉइन वगैरह के आप स्टोरी सुनते होंगे, यूट्यूब पे आपने देखा होगा.
तो क्रिप्टो इज वन ऑफ द फेनोमेना, इनफैक्ट इंडिया में थोड़ा टाइम लग रहा है आने को, लेकिन अभी जैसे हो रहा है कि जैसे आप अमेजोन से कुछ मंगवा सकते हो कोई पर्टिकुलर इंटरनेशनल प्रोडक्ट, राइट, वैसा क्रिप्टो का भी हो रहा है। तो आप, आई वुड से, जैसे आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो आप मतलब 5,000, 2,000, 3,000 रुपए से क्रिप्टो का एक्सपीरियंस कर सकते हो, राइट। वेदर वो बनता है बड़ा नहीं बनता है, बट आई थिंक अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो करेंसीज कुड बी एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइस, बिकॉज आई थिंक crypto will mature in next 10 years, and by the time you get there it should not happen कि आप उसको knowledge wise you are blind to that, okay, अपने को पता ही नहीं है वो नहीं होना चाहिए। तो and I think that's something which is interesting trend fintech में आपको देखना चाहिए। तो fintech में I think that's one important way, it's a very very interesting thing जहाँ पे वो fundamentals of doing business itself is changing। तो जैसे and I'll touch upon that in a Web3 kind of a concept। तो क्रिप्टो का एक ये है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, या मतलब ओनरशिप हो रही है। जैसे आज के डेट में होता है कि जैसे लेट्स से जैसे कोई कंपनी होती है, उसके कस्टमर्स होते हैं, तो सारा प्रॉफिट वगैरह कंपनी ओन करती है, उसके इन्वेस्टर ओन करते हैं। बट क्रिप्टो एंड वेब3 में दैट कंपनी का जो गवर्निंग बॉडी होता है वो भी कस्टमर ओन कर सकता है। सो जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें कस्टमर की ओनरशिप हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ज्यादा पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदोगे तो हो सकता है कि आप, एंड उसके साथ आपके पास पतंजलि का एक माइक्रो शेयर भी होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा बिकॉज पीपल आर यूजिंग। तो दैट काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट और ओनरशिप स्ट्रक्चर्स वहां से आ रहे हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है। आई थिंक यू गाइस शुड अंडरस्टैंड दैट टू सम एक्सटेंट, बिकॉज कम लेट्स से 10 year down the line you might be living your maybe your 30 to 40 years of age will be going into that kind of a world, and which better you should understand before. हेल्थ में आई थिंक एक ट्रेंड, हेल्थ इज अ लार्ज सेक्टर। आई थिंक लास्ट 2 साल में हमने बहुत उसका मतलब एक्सपीरियंस लिया हुआ है इस लास्ट, मतलब एंड बहुत सारे नए नए वेरिएंट्स वगैरह भी आने वाले। तो आई थिंक हेल्थ एक उसको टेलविंड बोल सकते हैं दैट्स बिजनेस टर्म्स में। देयर इज अ ह्यूज टेलविंड ऑफ कंपनीज गेटिंग क्रिएटेड एंड दे विल बिकम बिगर इन हेल्थ सेक्टर में होगा। हेल्थ में 2-3 ट्रेंड आ रहे हैं आई थिंक जो आपको वॉच करने चाहिए। कि हेल्थ में क्या होता था, पहले अपन जाते थे कोई डॉक्टर के पास, वो फिर कोई लैब में भेजता था। सो इट वाज मोर लाइक अ यू गो टू अ हेल्थ केयर सेंटर टू गेट सम ऑफ दिस थिंग। बट अभी क्या हो रहा है, जो हेल्थ सिस्टम्स है जो कंज्यूमर के पास आ रहे हैं, डॉक्टर्स एंड ऑल दिस पीपल आल्सो बिकम वन ऑफ द इनेबलर्स, दे आर नॉट द ओनली कंट्रोलर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स आ गए, आपके पास फिटबिट होगा किसी के पास, या किसी के पास कोई पर्टिकुलर वेरिएबल गैजेट होगा जो आपके फोन से कनेक्ट करता होगा। तो लॉट ऑफ दीज वेरिएबल्स, जैसे फॉर एग्जांपल जो हम स्कैन वैन करते थे, तो बहुत सारे टाइप के स्कैन ऑलरेडी वो वेरिएबल सब में आ चुके हैं। जो ब्लड मतलब हम डायबिटीज लोगों के लिए जो आपको जाना पड़ता था डॉक्टर के पास या कोई पर्टिकुलर क्लिनिक में, वो आपके घर पे कर सकते हो। तो बहुत सारी जो हॉस्पिटलाइजेशन और से हेल्थ केयर सिस्टम्स है वो कंज्यूमर के पास आ रही है। एंड वहां पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है कि बेसिकली क्या मैं वो MRI स्कैन को कोई ऐप बना के डाल सकता हूँ, क्या वो पर्टिकुलर जैसे स्टेथोस्कोप था, किसी ने वो मोबाइल बेस्ड स्टेथोस्कोप की ऐप बना दिया, तो डॉक्टर को बोलता है कि वो निकाल दो, ये सीधा मोबाइल से कनेक्ट कर लो, राइट। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो लॉट ऑफ दीज गैजेट्स ऑफ व्हाट डॉक्टर्स वर यूजिंग या कोई पर्टिकुलर पैथोलॉजी लैबोरेटरीज में होते थे, उसका माइक्रोफिकेशन होके कस्टमर के पास जा रहे हैं, राइट। बहुत सारे मीटर शायद आई थिंक आपके पर्टिकुलर फैमिली में पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वो कोई ना कोई पर्टिकुलर गैजेट यूज कर रहा होगा जो 10 साल के पहले अपने को वहां पे जाके कोई पैसा देके लाइन लगा के करना पड़ता होगा। आई थिंक सो दैट इज वन ट्रेंड व्हिच इज हैपनिंग इन हेल्थ केयर इकोसिस्टम्स, राइट। पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एट होम, राइट। जैसे वेंटिलेटर भी तो लोगों ने खरीद के घर पे लगा लिए, राइट। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स एज अ ट्रेंड हैपनिंग। एडटेक में तो ऑब्वियसली आई थिंक देयर इज अ ह्यूज रिवोल्यूशन हैपनिंग, स्पेशली ग्लोबली एक रिवोल्यूशन हो रहा है एडटेक एजुकेशन में। फॉर एग्जांपल आप यदि कुछ डिग्री कर रहे हो आईएसओनी कॉलेज से, आप वहीं पे बैठ के या कोई भी पर्टिकुलर यूएस का भी डिग्री आप पैरेलली कर सकते हो, राइट। कोर्सेरा या बहुत सारी साइटें हैं, उन्होंने अभी कोर्सेज डाले हैं, तो यू कैन एक्चुअली डू पैरेलल प्रोग्राम। तो स्किलिंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब एक आई थिंक there was a time last 30-50 years when somebody finishes his mechanical engineering, somebody finishes finance related kind of a knowledge, and he remains in that kind of a field for 15-20 years, but that is not going to be an option for most of you, is what I feel. इसीलिए एजुकेशन थोड़ा horizontal होने वाला है। So you need to understand different kind of skills, whether it's a digitization, computer related skill, whether it's algorithmic skill, data science related skill, whether particular domain skills. I think you need to have a little bit of horizontal view of the world, क्योंकि शायद अब वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। दैट इज अ ग्लोबल व्यू। लेकिन जो एडटेक का है वो इंडिया में और चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो NEP आ रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उन्होंने कुछ फंडामेंटल चेंजेस लाए हुए।
Now whenever there's a fundamental change has happened at a government or a policy level, फिर से एक सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आती है. तो बहुत सारी एडटेक कंपनीज आज के डेट में जो मैच्योर होगी नेक्स्ट 3 to 5 years और 10 years में, उनको बहुत सारे लीवर्स मिलेंगे फॉर ग्रोइंग देयर बिजनेसेस विथ एजुकेशन इकोसिस्टम. जैसे अभी वो पूरा पैटर्न ऑफ मतलब वो 10+2+4 इंजीनियरिंग, 10+2+3, दैट इटसेल्फ इज चेंजिंग. बोर्ड्स कुछ चेंजेस होने वाले हैं. तो यहाँ पे कहते हैं बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है किसी को आपको एजुकेशन सेक्टर में रहना है या उसमें कुछ करने का है. क्योंकि एक तो होता है आप मेहनत करके पुश करके बिजनेस बढ़ाओ, बट एक गवर्नमेंट ने आपको फंडामेंटल ये दी है कि भाई अभी जो पुराने लोग थे उनका वो भी शायद रिलेवेंट हो सकते हैं कि आप नया कुछ बनाओ, डिजिटाइजेशन या कोई भी पर्टिकुलर रेल लेके, क्योंकि हम आपको फंडामेंट बेसिक प्रिंसिपल ही चेंज हो रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आईफोन आने के बाद वो टच कीबोर्ड वाले फोन टच में चले गए, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी ब्लैकबेरी वगैरह भी वहां पे थी, दे गॉट वाइप्ड आउट जस्ट बिकॉज वो पूरा इंटरफेस चेंज हो गया. तो वैसा कुछ आई थिंक टेक सिस्टम के एजुकेशन सिस्टम में होने वाला है या होने जा रहा है. तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज वहां पे आएंगी. गेमिंग वी टॉक्ड अबाउट B2B, एक वो एक होता है जैसे फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ थिंग्स आई टॉक्ड अबाउट इज फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, राइट. बट जो बिजनेस साइड में वैसे सिमिलर है, जैसे फॉर एग्जांपल जो द वे लेट्स से पर्टिकुलर किराना शॉप आज के डेट में काम कर रहा है, या पर्टिकुलर कोई रिटेल शॉप काम कर रहा है, मॉल्स काम कर रहे हैं या कोई ब्रांड्स काम कर रहे हैं, वो चेंज हो रहा है, बिग टाइम चेंज हो रहा है. दे आर ब्रिंगिंग डिजिटल सिस्टम्स. जैसे आपने कुछ कंपनीज के नाम सुने होंगे, खाता बुक सुना होगा, या कोई दुकान नाम का ऐप सुना होगा, व्हाट्सएप बिजनेस सुना होगा, रिलायंस अपना कुछ जियो मार्ट करके ला रहा है. तो क्या हो रहा है कि देयर आर बिजनेसेस रहेंगे, आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू गो अवे, और एटलीस्ट दे विल देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू रन विद द सेम सेट ऑफ बिजनेसेस. उनके जो टूल्स हो रहे हैं ऑफ डूइंग बिजनेस आर चेंजिंग. Say for example, जैसे there was only one tool was called Tally, which people used to do earlier. But अभी पर्टिकुलर शॉप में आप बात करेंगे जो थोड़ा मतलब ठीक ठाक कर रहा है, he might be using 3-4 apps. पता चले एक्सपेंस मैनेजमेंट के लिए कुछ यूज कर रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए कुछ कर रहा है. तो B2B इनेबलमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स अभी बन रहे हैं. एंड इसको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है. मतलब जो अपने फार्मा रिटेल की बात की, फिनटेक की बात की, तो दैट मे बी द अपॉर्चुनिटी बी लोकल, इंडिया के इंडिया में होगी. लेकिन B2B की अपॉर्चुनिटी जो है, जो B2B SaaS बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विस काइंड ऑफ सर्विस अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, तो ये अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल होती है. बिकॉज देयर आर मेनी सिमिलर कंट्रीज लाइक इंडिया, जहाँ पे मॉम एंड पॉप शॉप्स, जिसको किराना शॉप बोलते हैं, परचून की दुकान बोलते हैं यहाँ पे. वैसे सिमिलर जैसे अफ्रीका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, देयर आर मेनी कंट्रीज, इवन यूएई पार्ट ऑफ दैट कॉन्टिनेंट, सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो, दे फॉलो सिमिलर काइंड ऑफ अ मॉडल. तो वहां पे आपका जो B2B बिजनेस आप यहाँ पे करोगे उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है. तो बहुत सारे B2B बिजनेसेस अभी इंडिया में मतलब दे आर डूइंग समथिंग ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट. यहाँ पे कर लो, प्रोडक्ट वगैरह मार्केट में फिटमेंट वगैरह देख लो, एंड देन गो ग्लोबल. तो यहाँ पे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है. सिमिलरली एडटेक में भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी. लास्ट बट नॉट आई थिंक आई वुड से कंटेंट एक पीस है. कंटेंट बहुत सारे लोगों के पास एक बार मतलब वो टीवी जैसा, ये बेसिकली टीवी आया, लोगों के पास इंटरनेट है, केबल सब कुछ लग चुका है, खाली कंटेंट डालना है ऊपर से. सो लॉट ऑफ कंटेंट कंपनीज केम, राइट. तो सिमिलर थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ ऑन आई थिंक मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट है सबके पास, डेटा सस्ता है इंडिया में, सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा सस्ता है. तो बहुत सारे जैसे OTT चैनल्स आ रहे हैं, Amazon प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, Z5 है, बहुत, एंड आई एम श्योर दैट यू विल नो 10 मोर जहाँ पे कंटेंट क्रिएट हो रहा है. लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, 24 घंटा हो पर्सन एंड डिफरेंट जॉनर ऑफ कंटेंट, स्पोर्ट्स, न्यूज में भी बहुत सारे, लेट्स से लोकल न्यूज है, हिंदी में न्यूज है, अलग लैंग्वेज रिलेटेड है. इंडिया एक्चुअली गिव्स यू लॉट मोर अपॉर्चुनिटी फॉर डिवाइडिंग पर्टिकुलर दैट, लेट्स से 3 से 4 बजे का दोपहर का टाइम लेते हैं, या 3 से 3:30 का भी टाइम लेते हैं, उसको अक्रॉस इंडिया हम 100 मिलियन के भी चंक करते, मतलब 10-10 करोड़ के भी अपन चंक करते हैं लोगों के. बहुत सारे क्लस्टर बन सकते हैं और बहुत सारा बिजनेसेस क्रिएट हो सकता है जस्ट ऑन अ कंटेंट पीस. की क्या मैं लेट्स से बिहार में लेट्स से दे लाइक लॉट ऑफ लेट्स से कंटेंट व्हिच इज भोजपुरी कंटेंट, राइट, एंड वहां पे उसका ऑडियंस है, उड़िया में कंटेंट है, राइट. एंड इंटरेस्टिंगली ऐसा नहीं है कि कोई आपका बिजनेस वो उड़ीसा में अटका रहेगा, महाराष्ट्र में अटका रहेगा, वैसा नहीं. क्योंकि बहुत सारे लेट्स से मराठी स्पीकिंग लोग अभी ऑलरेडी अक्रॉस इंडिया होते हैं. मतलब कोई भी उस कंपनी का अपन क्लस्टर देखेंगे, कोई डेटा क्लस्टर देखते हो, ऑलमोस्ट ऑल इंडिया आ जाता है. तमिल लोग का भी वैसा है कि तमिल को अपन लगता है कि खाली तमिलनाडु में चलता है, बट वैसा नहीं है. मतलब तमिल मूवी इफ यू लुक एट आफ्टर 10 days ऑफ बिजनेस, आपको देखेंगे क्लस्टर अक्रॉस इंडिया है. ऑब्वियसली तमिलनाडु विल बी वेरी वेरी डार्क काइंड ऑफ थिंग, वेरी डेंस, बट इवन लेट्स से कश्मीर में कोई तमिलियन बैठा हुआ है, ग्लोबली ऑब्वियसली दे आर देयर. सो आई थिंक इंडिया इज इन अ वे कॉस्मोपॉलिटन हो चुका है.
सो कोई भी पर्टिकुलर आप क्लस्टर लेते हो 10 करोड़ लोगों का, यू हैव इनफ बिजनेस टू बी डन ऑन अ कंटेंट और एनी काइंड ऑफ बिजनेस. सो दैट ये हमने क्या किया अभी लास्ट में से वी लुक्ड एट सेक्टर्स, उनकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती. बट यहाँ पे मैं वेब 3 को लाना चाहता हूँ. आई थिंक वेब 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो क्या हुआ कि पहला था वेब 1.0. वेब 1.0 क्या था कि जैसे कोई कंपनी, सिस्को ने बोला है, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है, जियो ने बोला, रिलायंस ने बोला कि हमारा साइट है, ये हमारी साइट देखो, हम ये करते हैं, तो सारे लोग उस पर पढ़ने वाले. वो न्यूज़पेपर जैसा था, ब्रॉडकास्ट मीडियम बोल सकते हैं अपन. जैसे न्यूज़पेपर आता है सुबह सुबह, आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, आपको खाली वो न्यूज़ बोलता है कि भाई ऐसा है तो ऐसा ही है, खुश हो जाओ, वही न्यूज़ है, राइट. समथिंग सिमिलर वाज वेब 1.0, जहाँ पे खाली कॉर्पोरेट्स स्टार्टेड शोकेसिंग देयर. वेब 2.0 आया. वेब 2.0 क्या बोलता है कि बेसिकली ठीक है, हम कस्टमर को मतलब विल क्रिएट मोर राइटर्स. इट्स कॉल्ड एज राइट वेब. राइट वेब मतलब क्या, जहाँ पे ब्लॉगिंग आई, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम भी अपन वेब 2.0 में बोल सकते हैं, कि वेयर कंज्यूमर्स लाइक अस, कि मेरे को कोई माइक्रोसॉफ्ट में होने की जरूरत नहीं है कि वो वेबसाइट में चेंज करने के लिए. आई कैन बी नॉर्मल पर्सन, आई कैन क्रिएट माई वेबसाइट, लेट्स से ब्लॉग, राइट. आई कैन स्टार्ट टाइपिंग, मैं इंस्टाग्राम टिकटॉक में जाके डांस कर सकता हूँ, जो भी है. सो आई थिंक दोस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन वेब 2.0, जिसमें राइट वेब हुआ. लेकिन वेब 3 में क्या हो रहा है, देयर आर सम फंडामेंटल चेंजेस आर कमिंग. तो इसमें तीनों चीज आती है. ऑब्वियसली रीड वेब, बहुत सारे लोग हम रीड करते हैं कुछ ना कुछ. सेकंड चीज होती है राइट वेब, जैसे कुछ लोग होंगे, आप में इसमें कोई इंस्टाग्राम में रील डालता होगा, कोई फॉलोअर होंगे, जो भी होगा. बट वहां पे एक थर्ड वर्ड आता है जो होता है ओन. तो यू कैन ओन द वेब. अभी क्या था, पहले दोनों इसमें ओनरशिप वाज विद कंपनीज. इंस्टाग्राम की ओनरशिप फेसबुक के पास है, व्हाट्सएप की फेसबुक के पास है, कोई पर्टिकुलर ब्लॉग के पास गूगल के पास है. दैट काइंड ऑफ थिंग वाज देयर. बट जो नया वेब 3 मॉडल जा रहा है, उसमें ये क्या मॉडल क्या बोलता है कि आप रीड, मतलब भले ही आप इंस्टाग्राम में रील बना रहे हो, बट उसका रेवेन्यू का ओनरशिप आपका रह सकता है. सेकंड, जैसे आप इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, या टेलीग्राम में बहुत सारे सेलिब्रिटी हो, टेलीग्राम भी तुमको बेनिफिट देगा उसका, जो आज के डेट में वेब 2.0 में नहीं होता है, राइट. वो रेवेन्यू शेयर शायद मिल सकता है आपको, एक दो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू वगैरह कुछ मिलेगा, बट यू डोंट ओन अ स्टॉक ऑफ लेट्स से दैट पर्टिकुलर कंपनी. बट वेब 3 में यू, बिकॉज यू आर अ कंट्रीब्यूटर, यू आर राइटर और कंट्रीब्यूटर, इवन कम्युनिटी आप फॉलो भी कर रहे हो किसी को, तो यू बिकम ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, वेब. तो यहाँ पे जो वैल्यू क्रिएट होती थी पहले, समझ लो कोई $1 बिलियन आप 1,000 करोड़ की कंपनी होगी, दैट वाज कंप्लीटली ओन्ड बाय दोस पीपल. एंड मे बी फ्यू यूट्यूबर्स, लेट्स से यूट्यूब में जो उसमें लगाते हैं अपन, तो दे ओन लिटिल बिट ऑफ अ रेवेन्यू शेयर, बट दे वर नॉट ओनर ऑफ दैट कंपनी. वेब 3 में क्या हो रहा है कि जैसे कंपनी के शेयर की बात करते हैं, तो कंपनी के शेयर कैसे बढ़ते थे, राइट. कोई स्टार्टअप लेते हैं, कोई लेट्स से फेसबुक के शेयर की बात करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, राइट. जब तक वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, फिर बहुत सारे शेयर ओनर यूज करता है, उसके पास होते हैं, कुछ एम्प्लॉइज के पास होते हैं, उसको ईसॉप पूल बोलते हैं, एंड कुछ इन्वेस्टर के पास होते हैं. अभी उसमें पब्लिक इन्वेस्टर भी आ सकता है. बट मतलब मैं फेसबुक का यूजर नहीं हूँ, तो मैं फेसबुक का शेयर खरीद सकता हूँ मार्केट से, तो आई एम इन्वेस्टर, बट आई एम नॉट कॉन्ट्रीब्यूटर टू फेसबुक, मे बी आई एम नॉट यूजर ऑफ फेसबुक. तो बट अभी क्या हो रहा है, उसमें और एक कैटेगरी आ रही है, कंज्यूमर. तो ये होगा कि नया वेब 3 कंपनीज में क्या हो रहा है, जहाँ पे क्रिप्टो भी आता है, कि उसमें जो कंज्यूमर है, मतलब आप उस साइट को यूज भी कर रहे हो, या आप उस साइट पे कुछ मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इंस्टाग्राम में रील बना रहे हो, तो whenever any kind of activity happens, you get a microfied share of that particular company. तो आप एक ओनर बन रहे हो माइक्रोफाइड फॉर्मेट में. तो उसको वैल्यू डेमोक्रेटाइजेशन बोल सकते हैं. तो पूरी जो फेसबुक की या कोई भी कंपनी की वैल्यू थी, वो भी धीरे धीरे करके कस्टमर के पास भी आ रही है. पहले दैट वाज नॉट एन ऑप्शन. यू कैन बाय द वैल्यू फ्रॉम मार्केट, बट एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर आपके पास कोई वैल्यू नहीं थी. मतलब जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो इतना मोबाइल पे वगैरह, उसका आपको कोई वैल्यू नहीं है. मतलब आप उसको डेटा के लिए पे कर रहे हो, टाइम आप उसमें डाल रहे हो, सब कुछ डाल रहे हो, बट यू आर नॉट बिकम ओनर ऑफ द कंपनी. तो वो एक वेब 3 में आ रहा है कॉन्सेप्ट. तो उसके वजह से क्या होने वाला है ना, बहुत सारे चेंजेस आने वाले अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट. मतलब एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक मे बी आई लीव इट टू योर थॉट कि उसमें इवन ब्राउजर्स आर चेंजिंग. जो ब्राउजर अपन सोचते हैं ना, क्रोम हो गया, ये हो गया वगैरह, क्रोम, मोजिला एंड भी आप यूज कर रहे हैं, इवन दैट इज चेंजिंग इन वेब 3 काइंड ऑफ अ थिंग. क्योंकि उसमें मतलब चलो आप फेसबुक यूज कर रहे हो, तो आपको दिखाना पड़ेगा ना फेसबुक कि आप इतने शेयर ओन करते हो. तो आपने 2 घंटा फेसबुक में डाला, तो आपने एक ना हाफ $1 उसमें कमाया हुआ है, एंड वो आपके पास एक यूनिट आ जाएगा. और फेसबुक की वैल्यू कल बढ़ेगी, तो अपने आप आपको पता चलेगा अभी $1/2 के $3 हो चुके हैं, राइट. दैट काइंड ऑफ थिंग. सो दैट browser to have a wallet kind of a thing for every time spent, etc.
So some of these few changes are coming, which might even change the web fundamentally different. It's like almost like that keyboard से touch वाला phenomenon है, उस तरह से change हो सकता है. तो आपको ट्रेंड आई थिंक पढ़ना है, उसके बारे में अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट. एंड वेब इंडिया में अभी तक वेब 3 धीरे धीरे आ रहा है. एंड जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई जस्ट टेक 2 minutes टॉक अबाउट कि इकोसिस्टम कहाँ जा रही है, राइट. वी टॉक्ड अबाउट अपॉर्चुनिटीज, वी टॉक्ड अबाउट कि अभी मतलब डिजिटाइजेशन इनफ हो चुका है. एंड डिजिटाइजेशन नॉट डिजिटल डजंट मैटर. आई थिंक मतलब बहुत सारे अभी नए ब्रांड भी आ रहे हैं जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स को मतलब कितने दिन तक एक ही टाइप का बिस्किट खाएंगे, राइट. 2-3 जो पुराने ब्रांड थे, गुड लाइफ है, पार्ले जी एंड ऑल दिस थिंग, पीपल वांट वैरायटी नाउ, राइट. एंड जो बहुत बड़ा चेंज इवन नॉन डिजिटल स्पेस में हो रहा है, राइट. फिर राइट नाउ आई थिंक नेक्स्ट 5 to 6 years आप देखोगे इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो 3-4 चीजें होती हैं. एक होता है कंज्यूमर. तो कंज्यूमर तो हमने देख लिया कि डिजिटाइज हो चुका है, उस कंज्यूमर को वाइब्रेंसी भी चाहिए, उसके पास पैसा भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आई थिंक दे आर विलिंग टू स्पेंड. तो इंडिया दिस करता हूँ. एंड यहाँ पे थोड़ा जीडीपी की बात कर लेते हैं. तो क्या होता है कि जो पर कैपिटा जीडीपी जो बोलते हैं कंट्री की होती है, राइट. पर कंट्री की जीडीपी होती है, आपने कुछ कहीं थ्योरी में पढ़ा होगा. तो 2018-19 में इंडिया कॉस्ट अराउंड $2,000. तो जैसे पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू करते हैं, वो 100 करोड़ वालों में बांटते हैं, तो वो $2,000 की अराउंड आती है. इट्स अराउंड व्हाटएवर, जो 7.5 से गिन लो, जो भी आता है वो. तो वहां पे रिवोल्यूशन होते हैं. जैसे चाइना बिकेम चाइना ऑफ टुडे आफ्टर वो $2,000 क्रॉस हुआ. तो 2000 के बाद में जो वेलोसिटी होती है ऑफ कंजम्पशन इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो इसीलिए आई थिंक देयर वाज वन मोर फैक्टर विच बिकॉज ऑफ कोविड में हमारा जो ये चला, आई थिंक वन ऑफ द फैक्टर वाज कि लोग इतने गरीब, मतलब we have little bit of a poor and that percentage is also higher, but एक basic $2,000 का एक ये होता है. If you look at a long, let's say very trend of let's say 200-300 years of particular countries etc. development on this thing, $2,000 का एक kind of milestone के बाद में वो शॉर्ट करता है. वो इंडिया में हो चुका है. तो कंज्यूमर साइड में वो स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है. सेकंड है गेटिंग एंड बिल्डिंग अ कंपनी इज मच इजियर इन इंडिया. पहले बहुत मारामारी होती थी, मतलब पैसा चाहिए, घर से लाना पड़ता था, ऑल दिस थिंग्स. But that is much easier. Many of the people are starting in second year, third year, their own startups right now. By the time they come out, they have some business and revenue also. So starting a company is much easier right now. Closing में बहुत अभी भी पेन है, but starting a company is much easier. And raising money for a company is also relatively much easier. वहाँ पे I think third pillar, which कोई भी particular country का जो होता है, government is big time behind entrepreneurs right now. There are Startup India programs, हर स्टेट के पास बजट्स हैं, and these are huge budget, hundreds and thousands of crores of budgets are there. So तो आपको वहाँ पे 5 से 25 लाख लेने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है. There are different schemes. Only thing आपको आइडिया सोचना है बराबर से, and you'll be able to get that money, and which is good enough for a student or a new person coming out. क्योंकि शायद आपकी सैलरी से ज्यादा शायद आपको वो ग्रांट वांट मिल सकता है इफ यू आर थिंकिंग इट राइटली एंड प्रेजेंटिंग इट राइटली. तो एक आप देखोगे कि कस्टमर रेडी हो चुका है. क्रिएटिंग बिजनेस, जो फ्रिक्शन ऑफ क्रिएटिंग एंड सेटिंग अप बिजनेस इज आल्सो लोएस्ट राइट नाउ, राइट. एंड इट विल ओनली गोइंग टू बी इजियर एंड इजियर. थर्ड, एज अ गवर्नमेंट इज गोइंग टू सपोर्ट. एंड जो लास्ट पिलर होता है इकोनॉमी का, जो होता है कि फॉर एग्जांपल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. फॉर एग्जांपल टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, एवरीबडी है, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एचयूएल ऑफ द इंडिया, इवन डिफेंस वाले लोग हैं, उन सबने इंक्यूबेशन खोल चुके हैं, राइट. मतलब छोटे से छोटा कोई भी कैटेगरी लो, आप फूड की ले लो, मतलब ग्रेन आपको जो दाल को पॉलिश करना है आपको, तो हैदराबाद में सबने कॉल मिलेट सेंटर. एवरीबडी हैज ग्रांट्स एंड एवरीबडी हैज इंक्यूबेशन सेंटर, इनोवेशन सेंटर. तो आपको पूरा कुछ पता नहीं है, आपके पास पता था कि 3 चीजें मेरे को पता है, बाकी 4 चीजें इंग्लिश ने पता नहीं है. तो आप इंक्यूबेशन में चले जाओ, वहां पे कुछ ग्रेड, मतलब वहां से आप वहीं से बिजनेस सेट कर लो, वो भी हो सकता है. तो आई थिंक ये 2-3-4 पिलर जो होते हैं, वन इज द एंटायर बॉटम लाइन नंबर ऑफ जीडीपी that has crossed that kind of a threshold where the economy only can possibly grow for certain time, और एटलीस्ट जो सिलेक्टेड बिजनेस होती है उसकी ग्रोथ होगी अच्छे से. क्योंकि आप 0 से चालू करोगे तो आपका 1, 5, 10 विल बी ऑलवेज लाइक आपकी एक्सप्लोसिव ग्रोथ होगी, जो शायद बड़ी कंपनीज की ना हो. तो स्टार्टअप की ग्रोथ अच्छी दिखेगी. I think the environment is very, very right now. But that's it. And I think
बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक अ वाइज डिसीजन, क्योंकि एंड ऑफ द डे बिजनेस में पैसा लगता है एंड शायद आपको पेरेंट्स का पैसा लोगे, फ्रेंड्स के पैसा लोगे, तो डोंट वेस्ट दैट मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And any money which you will get to run your business, while it is easy money, it's somebody else's hard-earned money, right? So spend wisely, but happy to kind of take more questions now. So just we talk about three things: the economy of India, GDP, etc. What are the sectors, and last but not least, this ecosystem which is ready right now. Many favorable factors which possibly was not there, let's say maybe 5 years back. I'll stop here and maybe take more questions or whatever you want to do now. If anyone of you have any questions, you can unmute yourself. सब लोग का डिनर टाइम हुआ होगा तो आई थिंक नॉट श्योर. Sir, I was having one. Yeah. Sir, you talked about the Web3 model. So, is there any IPO, like initial public offering by the companies, or just the person goes there and do some activities and they grant him or her the ownership, or they are the stakeholders actually? तो जैसे आपने देखा होगा कंपनीज के आईपीओ होते हैं, राइट, कि भाई कंपनी थोड़ी बड़ी होने के बाद देन देखो वो ओपन द पब्लिक लिस्टिंग, जैसे आप मार्केट से टीसीएस का शेयर खरीद सकते हो. तो इसमें क्या होता है, आईपीओ थोड़ा पहले होता है वेब3 कंपनीज का, क्योंकि आपको पब्लिक को शेयर देना है. एम्प्लॉय का, यू आर नॉट एम्प्लॉय. जैसे आप कोई इंस्टाग्राम पे कोई रील बना रहे हो, कुछ वीडियो बना रहे हो, तो आप एम्प्लॉय तो हो नहीं, आप कंज्यूमर हो. तो वो क्या करते हैं, एक पूल लेट्स से 10%, 20%, डिपेंड ऑन काइंड ऑफ कंपनी, दे विल से आई हैव 50% कंज्यूमर शेयर. तो 50% ऑफ द कंपनी, 30% ऑफ द कंपनी, 20% ऑफ द कंपनी के उसके माइक्रोफाइड स्टॉक बन जाते हैं. जैसे आईपीओ में होता है कि पर्टिकुलर मिलियंस ऑफ लेट्स से 2-3 करोड़ शेयर मार्केट में चलते रहते हैं, एंड यू हैव दैट थिंग. तो वैसे माइक्रोफाइड स्टॉक बन जाते हैं और जो आपको मिल सकते हैं, राइट. सो यू एज अ यूजर हैव ऑप्शंस, एंड जो आपको सर्टेन एक्टिविटी करने का, जैसे गेमिंग में आपके पास पॉइंट होते हैं ना, आप जैसे ज्यादा गाड़ी चलाओगे या किसी को ज्यादा लोगों को किल करोगे, आपको पॉइंट मिलते रहते हैं. सो दैट इकोनॉमी इज कमिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज लाइक अ, जैसे आईपीओ होता था, देयर आर मॉडल्स लाइक आईसीओज एक्सेट्रा. सो वेब3 में कुछ नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं. यू कैन डू आईपीओ बिफोर फॉर कंज्यूमर्स. Yeah, sir, got it. Thank you, sir. It was an awesome session, sir. Okay, good. Thank you, sir. I too have a question that we are final year students, and whenever there comes recruitment issue, students prefer MNCs as compared to startups. So आता आम्ही पण थर्ड इयर मध्ये आहे, तर मग ते एक फिक्स्ड इंडियन थॉट प्रोसेस असते की फायनल इयर नंतर नाही बाबा जॉब करायचा आहे आणि एमएनसी मध्ये करायचं आहे. तर मग तुमचं ओपिनियन काय आहे याच्यावरती? ऍज अ फ्रेशर व्हॉट वुड यू सजेस्ट अस फॉर डुइंग? आई वुड से एज अ फ्रेशर सारे ऑफर लेके ले लो एंड देन डिसाइड. बिना ऑफर के ना वो मतलब अदरवाइज यू विल कीप डिसाइडिंग एमएनसी में जाना है, एमएनसी में जाना है, एंड अप्लाई करने के बाद इन्फोसिस कॉल नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होती है, राइट. सो आई वुड से गेट ऑल द ऑफर्स, एंड यू हैव एज अ फ्रेशर आपको वो ऑप्शन होता है, यू कैन गिव एज मेनी इंटरव्यू एज यू वांट, एंड देन डिसाइड कि भाई बहुत सारा ऑफर होने, बिकॉज पब्लिक क्या बोलता है इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. लेट्स से आपके पास एक ही ऑफर आती है स्टार्टअप से, तो यू बेटर जॉइन दैट. चॉइस में बात, चॉइस होने के बाद वो ऑप्शन करना इंपॉर्टेंट है. तो प्रायोरिटी बहुत क्लियर रखो. Yes, sir. Thank you. Do anyone else have any questions? Yes, actually, sir, you have said that in Web 3.0, we would have ownership, the users would have ownership, and that would decline the value of company. So why would big giants like Facebook and other companies would promote Web 3.0? It will decline the value. I think जैसे पहले था, राइट, पहले कंपनीज बनती थी जो एम्प्लॉयज को कुछ देते नहीं थे, राइट. पहले कंपनी जो बनती थी लेट्स से 90 मे बी 2000 ईयर बिफोर दैट, कंपनीज एम्प्लॉयज को कुछ देती नहीं थी, बोलते सैलरी ले लो बहुत है भाई, अभी तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, राइट. जो 2000 से अभी तक का चेंज हो गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल जॉइन सर्टेन कंपनी फॉर स्टॉक्स. आपने देखा होगा ये एम्प्लॉय, इन्फोसिस का एम्प्लॉय, उसके पास स्टॉक्स है, राइट. तो क्या होता है कि उनको पता चल गया है कि बेसिक आई थिंक द बिजनेस ओनर्स फाउंड आउट कि
जैसे फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट अ कंपनी, अभी आप कंपनी खोलते हो तो आपके मतलब आपके पास 100% शेयर होंगे कि आप ओनर हो, बट आपको लगता है लोग अच्छा काम कर रहे हैं या मेरे को मतलब आई वांट टू स्केल फास्टर, तो सैलरी से काम नहीं होता है, राइट? एंड पीपल फिगर दैट आउट। तो एम्प्लॉइज को स्टॉक्स मिलने चालू हुए, जो एक मे बी लास्ट 20 साल का फिनोमेना है। अभी क्या उनको पता चला, चलो भी जैसे लिंक्डइन का अंडरस्टैंड करते या फेसबुक की बात कर लेते हैं। फेसबुक के बहुत सारे यूजर इंडिया में, राइट? तो फेसबुक है यूएस की कंपनी, स्टॉक लिस्टेड है यूएस में, लेकिन उसका वैल्यूएशन इंडियन कंज्यूमर्स के बारे में वजह से बन रहा है। तो एक बहुत सारा सिस्टम के ऊपर प्रेशर है कि भाई तुम वैल्यू बना रहे हो यूजर्स के ऊपर, तो व्हाई डोंट यू गिव द बेनिफिट्स टू यूजर्स। जैसे एक था प्रोप्राइटरी बिजनेसेस चलते थे पहले कि मैं ही लाला आदमी हूँ, मेरे पास ही सब कुछ रहेगा। उनको पता चल गया कि एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, अच्छा बंदा लाना है मार्केट से, तो दे हैव टू हैव सम इंसेंटिव, सक्सेस पार्टनरशिप इंसेंटिव होना इंपॉर्टेंट है, तो वो छोड़ जाएगा सैलरी के लिए वापस फिर से। तो एक हुक बन गया वहां पे। सेम थिंग राइट नाउ, वो हुक कस्टमर के पास आएगा एंड दे डोंट हैव ऑप्शन राइट नाउ। यदि फॉर एग्जाम्पल फेसबुक के चलते लेट्स से कोई आपने मेटावर्स में कुछ या कोई नई साइट बन गई, कोई थर्ड पार्टी, और वहां पे अपने को स्टॉक मिलने लग गए, सारे फेसबुक के लोग वहां चले जाएंगे, उनको तो बेनिफिट मिल रहा है वहां पे, राइट? तो वो एक, एंड दैट इज व्हाई वेब3 इज इंपॉर्टेंट। तो जो लैगर्ड्स बड़े जायंट्स होंगे शायद उनके पास ऑप्शन नहीं होगी, दे हैव टू गिव वैल्यू टू देयर कस्टमर्स कि भाई आप मेरे से खरीद रहे हो तो आप मेरे पार्टनर हो, मेरे बेनिफिशियरी हो, राइट? तो वो एक नेचुरल प्रेशर ऑफ सिस्टम है जहाँ पे ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वैल्यू इज इसेंशियल, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा स्टेक पे है राइट नाउ, राइट? जैसे आज के देखेंगे यार, जो इंडिया की पूरी टोटल जो बोलते हैं ना $5 ट्रिलियन की जीडीपी होगी या दैट काइंड ऑफ थिंग, अभी 2.5-3 बिलियन ट्रिलियन की चल रही है। एप्पल एज अ कंपनी का वैल्यू उतना है। एप्पल जो कंपनी है उसकी टोटल वैल्यू इज लाइक इंडिया में जितना भी अपन खरीद लो जो भी है उसकी वैल्यू उतनी है, वन कंपनी। तो दैट काइंड ऑफ व्हेन दैट थिंग हैपेंस, राइट, इट्स जस्ट टू मच कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो उसको एक नेचुरल प्रेशर है टू कम डाउन। तो मतलब देयर आर इकोनॉमिक फैक्टर, आई थिंक यू शुड रीड लिटिल बिट अबाउट इट, बट मोर देन दैट फंडामेंटल वो चेंज होने के बाद व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइट नाउ। Thank you very much, sir. और कोई क्वेश्चन? Is there anyone else? We are done with the questions. Yeah, looks like. Yes, it seems like we are done with the questions. So, on the behalf of CSE-IT-AI-DS Department, GHRIBM Institute of Business Management, I would like to express my gratitude to all the esteemed delegates of the session for their presence and contribution to make this session a great success. This workshop was organized in association of Institute of Innovation Council, for which I would like to thank Director Dr. Preeti Agarwal Ma'am, Dean Academics Dr. Pranav Charkha Sir, Executive Director Shri Preetam Raisoni Sir, and Dean Academics, Dean R&D Professor Saurabh Gupta Sir. I extend my special gratitude towards Mr. Bhushan Patil for sparing his time for us and helping us add new areas to explore. Thank you for sharing your time and knowledge with us, sir. A special thanks to HOD of CSE-IT-AI-DS Department for organizing such knowledgeable events for us, and lastly, all the participants for being such a graceful audience and cooperating throughout the session. Thank you. Thank you, and thanks a lot. Thank you, sir. Okay, but bye bye.